वो कहीं ना कहीं सत्या से जो आपने शुरुआत की थी, जो इरफान साहब ने शुरुआत की थी, थैंक यू फॉर दैट. You do realize you have another 30, 40, 50 years, no? love At it. 95, at 95 you're going to I be like can't Clint kiss you Eastwood. because of Winning more awards. When I read Sector 36, it was definitely against the tide because एक conventional 12th fail के बाद लोगों ने typecast करने लग रहे थे actually. I want to act for as long as I can. I want to keep that creative thing within me alive. Just to fill me, just to fill me. आज मैं पहली बार सर से मिल रहा हूँ. Really? पहली बार मिल रहा हूँ. जी जी पहली बार मिले हम कभी मिले Oh नहीं my हैं. God. एक दूसरे के बारे में जानते हैं. जिस साल 12th फेल आई थी उस साल जोरम भी आई थी. उसने बंदा आए थे बंदा भी बंदा और जोरम जोरम दोनों आई फिल्में थी. They really inspired us. बस मैं सिर्फ बीच में ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर बीइंग द टॉर्च बेरर इन दैट केस. कि आप कैसे दिखते हैं, आपकी कितने इंच बाइसेप्स हैं, आपके इंस्टाग्राम का क्या है, वो कहीं ना कहीं पंकज जी तो मुझसे भी बहुत सीनियर है, लेकिन मैं भी जो हूँ शायद आप कह सकते हैं उनसे भी बाद की जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं सत्या से जो आपने शुरुआत की थी, जो इरफान साहब ने शुरुआत की थी. थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू थैंक यू Ah, goosebumps. Oh God. I Speaking just of want. that candle you were saying, na, Deep, दीपक Pratesh. you do realize you have another 30, 40, 50 years, no? love At it. 95, at 95 you're going to I be like can't Clint kiss you Eastwood. because of Winning more awards. This is the eternal flame, sir. नहीं कुछ कम नहीं होने वाला है. I love this. Yeah. Thank you, Chaya ji. Thank you. Because sometimes, you know, when people say it, they say it better than we could say it. So, thank you, Manoj. Really. Vikrant, I think you had a phenomenal year for so many reasons. And I'm going to include 12th fail in that. Because it came at the end of last year. But the impact of a 12th fail हमने इस साल देखी. You know, whenever you asked anybody in this year what was your favorite film, they just said 12th fail. And पिछले हफ्ते संडे के दिन हम दोनों देहरादून एयरपोर्ट पर थे. We were there for 2 hours, guys. Our flight was delayed. Right. 2 घंटों तक people have come to Vikrant and said things like, नहीं मुझे आपके साथ फोटो नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. Thank you for your performance. And I think that's really special. And this year you've had Phir Aayi Haseen Dilruba, you've had Sector 36 in which you were particularly terrific, you had Sabarmati Report that you truly believed in. But I want to take you to Sector 36 as a choice because with 12th fail, suddenly we had this ब्यूटिफुल हीरो जो हमारी तरह दिखता है, हमारी तरह महसूस करता है चीजें, who could fail as well, and suddenly you were like India's boy, okay? Then you take this India's boy and put him into a serial killer route, which is a very, very interesting choice. Without, and that is to me very fearless. So you kind of cracked the code and then you broke it. Guts कहाँ से आते हैं आपके पास, जरा बताइए. कौन सी दुकान पे हैं? काश दुकान होती है ना? तो हाँ हम सबसे पहले लाइन लगाते हैं. I don't know. I think all these years जब मैंने टेलीविजन भी किया लगभग, you know, I did television for 10 years. तो बालिका वधू का हिस्सा था मैं, and I'm really proud of it. तो जब एक्चुअली वहीं से इंस्टिंक्ट को मैं बहुत बैक करता हूँ अपने. जब कुछ पढ़ के ऐसा लगता है कि अगर वो जो चीज मेरे सामने है, अगर वो इमोशन मेरे अंदर इवोक करती है जो वो करना चाहती है, तो मैं कहीं ना कहीं यू नो आई कैन गेज कि इट विल डू द सेम टू द ऑडियंसेस दैट आई वांट टू मेक इट फॉर. मेरे पास भी एक्चुअली इसका कोई जवाब नहीं है. आई जस्ट फेल्ट राइट व्हेन आई रेड सेक्टर 36. इट वाज डेफिनेटली अगेंस्ट द टाइड बिकॉज एक कन्वेंशनल 12th फेल के बाद लोगों ने टाइपकास्ट करने लग रहे थे एक्चुअली रोहिणी. हाँ, क्योंकि आप हीरो हो. क्योंकि उसके पहले भी यही रहा, चाहे वो हसीन दिलरुबा हो या चाहे वो डेथ इन द गंज की अगर हम बात करें, यू नो कि अ सेंसिटिव गाय नेक्स्ट डोर जो कन्वेंशनल हीरो नहीं है, वो हो नहीं पाया. बट 12th फेल के बाद खास तौर पे मुझे लगा कि अब ये करने वाले हैं कि गांव का गरीब लड़का सीधा साधा विक्रांत को बुलाओ. आई वॉन्टेड टू ब्रेक दैट एंड आई ऑल्सो हैड नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले समथिंग लाइक प्रेम सिंह. तो जब दिनेश विजन ने मुझे कॉल किया और कहा कि ये है, तो मेरा खुद का ये था कि शायद मुझे पुलिस वाले के लिए बुलाएंगे. तो उन्होंने कहा कि नहीं, तू ये पढ़ के देख, अगर तुझे ये करना है तो कर ले, बिकॉज आई लीव बोथ दीज कैरेक्टर्स ओपन फॉर यू. तेरे को जो प्ले करना है दोनों में से तू प्ले कर. आई सेड आई वांट टू प्ले दैट. One of the reasons also besides the fact that yes, a big chunk of it was not wanting your audiences to typecast you.
द फिलॉसफी बिहाइंड दैट कैरेक्टर, अगर आप सिर्फ इंटरोगेशन सीन की बात करें जहां पे वो सारी चीजें तमाम चीजें कर रहे हैं, उसके बावजूद जो उसका वर्ल्ड व्यू है, कहीं ना कहीं उस वर्ल्ड व्यू से मैं बहुत आसानी से रिकग्नाइज करता हूं, बिकॉज मैं खुद मुंबई शहर का पला बड़ा हूं। मुझे भी पता है कि कहीं ना कहीं मैं भी उस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हिस्सा था जो ब्रिज के नीचे रहने वाले लोगों को कभी नहीं देखते, बिल्कुल। जो एक क्लास डिस्पैरिटी है हमारे समाज में आज भी, खास तौर पे मुंबई शहर में या देश के बड़े बड़े शहरों में। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत करीब से देखी हैं। तो अगर जब ये दोनों चीजें अमैलगमेट हो रही थी, आई फेल्ट कि यार ये दुनिया तो मैंने देखी है, कहीं ना कहीं जी भी है। तो वो जो उसकी फिलॉसफी थी, जो उसका वर्ल्ड व्यू था, मैं उससे बहुत रेजोनेट कर पाया। तो या एंड आई वर्क विद एन इनक्रेडिबल डायरेक्टर हु इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वी आदित्य निंबलकर, जो फिल्म के निर्देशक हैं। व्हेन ही वाज विशाल जी's एडी, तब हम लोग बैठ के बात करते थे कि यार कभी साथ में काम करेंगे, एंड इट जस्ट हैपेंड। His first film was with me, and we said कि यार अब तो एक दूसरे के लिए काम करना है। And we had a Dinesh Vijan, this really secure, very very nurturing kind of an umbrella over our head, and the right people to make the film, और लोगों ने पसंद भी की फिल्म फिर। बहुत ही बढ़िया। Thank you for explaining that choice to me, because I was like, he can continue to be the hero. You know, it's a drug. But I want to do a lot of But it's a drug. Like being a hero, being a lead. I don't know how you look at it, but it's a drug. You want to be, you know, even more and even more. You want to look even better. See, even the more- poster should be even bigger. नहीं, मेरा वैसा बिल्कुल नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। मुझे एक्चुअली बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि पोस्टर पे मैं हूं कि नहीं। मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है, अगेन आई एम गोइंग बैक टू मनोज सर, ये भी भीखू मात्रे कर सकते हैं, फिर ये शूल भी करते हैं, फिर ये भैया जी भी करते हैं, फिर ये जोराम भी करते हैं। तो ये और इरफान साहब हैं, जो इन तमाम लोगों को देख के हम कहीं ना कहीं 2003 में, मैं नेशनल कॉलेज में पढ़ता था सर, मेरे कॉलेज के ठीक पीछे गेटी गैलेक्सी था, 30 रुपए की स्टॉल की टिकट लेता था मैं। जब मैंने मकबूल देखी, मेरा दिमाग उड़ गया। मैं अगले दिन दोबारा गया देखने के लिए, 2 दिन में 2 बार मकबूल देखी, तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एक्टर बनना है। सो दे हैव एम्पावर्ड अस। इनसे पहले नसीर साहब थे, फिर उनसे पहले बलराज सानी साहब थे। तो ये हमेशा रहे हैं, बस इन्होंने हम सबको बहुत एम्पावर किया है। तो पोस्टर का क्या होता है कि it really does not matter, you know, it really does not matter. By the end of it, in an age, I'll just take 30 more seconds, in an age जहाँ पे attention deficit हम सबका इतना कम हो गया है कि थिएटर के बाद अगर 15 मिनट भी कोई फिल्म अपने साथ लेके जाता है ना, वो हमारी जीत है। You've had quite a interesting, you know, film happen to you this year, because you had a baby boy. And I must say that we are here because, see, I really think that we are not just actors and not just directors. We're also parents, and we're Absolutely. also children, Absolutely. and we're human. So I do want to take a moment to congratulate you. I've seen how much that has impacted your life. He is that guy, guys. He's मेरी बेटी की फोटो देखो। He is that guy, and it's lovely. Look at this. Look at this video. Yeah, Ro, just look at this video, and I'm here for it. Congratulations. I'm sure that will change you as an actor as well. It I'm already sure. has in so many ways. Yeah. And then there was a post that you put out recently where I think it got too much attention than you even asked for. People thought you said you were wanting to take a break and retire, but everyone thought you were quitting the movies. Yeah. The crazy thing about clarifications is it doesn't travel because it's good news. We're here now. Yeah. I think we've probably got you on camera for the first time since. What happened? एक तो माय वाइफ वाज टेलिंग मी कि यार तुम अपनी पिक्चरों में बड़ा हिंदी करते हो, तुम हिंदी बोलने वालों को बड़ा तुम रिप्रेजेंट करते हो। उस पोस्ट में इतनी अंग्रेजी लिख दी तुमने, तुम वो हिंदी में क्यों नहीं लिख पाए? आधे लोगों को समझ नहीं आया। और मैंने भी उसे काफी कंसाइज करने की कोशिश की, बट टू कीप इट ब्रीफ, यार एक एंड आई मेंट इट, आई मीन इट व्हेन आई से दिस थिंग, यू नो, सच में मैंने और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि आई जस्ट वांटेड टू एक्ट, आई जस्ट वांटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। फिर चाहे वो टीवी हो, चाहे वो यूट्यूब की शॉर्ट सीरीज हो, या ओटीटी हो, या सिनेमा हो, ये सब मैंने मीडियम्स कभी तय नहीं किए। और मैं रॉजर फेडरर का बहुत बड़ा फैन हूँ। रॉजर फेडरर ने अपने रिटायरमेंट के कुछ साल पहले, जब उनको बहुत इंजरीज हो रही थी, वो कह रहे थे कि यार एक एक्सपेक्टेशंस अब आ गई हैं लोगों की, पर आई तो ऑलवेज वांटेड टू बी दैट बॉय हु जस्ट एंजॉयड प्लेइंग। वो खेलते खेलते आप ग्रैंड स्लैम्स जीत गए तो वो हो गया,
because of the expectations, I lost that joy of playing, जिसका एक्चुअली मेरे से कोई लेना देना नहीं. वो एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी एक एक्सपेक्टेशन है मुझसे, बट क्योंकि वो एक एक्सपेक्टेशन है, मेरे खेलने का नजरिया बदल गया. जिस तरह मैं कोर्ट पे प्रैक्टिस करता था या सुबह उठता था, विद ऑल ह्यूमिलिटी, मैं 12th फेल जो हुई, फिर उसके बाद सेक्टर जो हुई, फिर ऑल द थिंग्स, साबरमती ऑल्सो, द काइंड ऑफ लव दैट द फिल्म गॉट, मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था रोहिणी. हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, मैंने वो पोस्ट डाला था रात को, और अगले दिन द एंटायर कैबिनेट मिनिस्ट्री वाज वाचिंग माय फिल्म. द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी वाज गोइंग टू वॉच माय फिल्म. सो माय वाइफ एंड आई वर टॉकिंग, हम बैठे थे फोन पे बात कर रहे थे, एंड शी सेड कि यार इस देश में इससे ज्यादा तुम और क्या ही कर सकते हो. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज गोइंग टू वॉच योर फिल्म. पहली फिल्म जो 11 साल में उन्होंने एक फिल्म नहीं देखी, वो मेरी फिल्म देख रहे हैं. आई थिंक इट्स टाइम दैट यू जस्ट एंजॉय ऑल ऑफ इट. राइट. तुम किस दौड़ के पीछे भाग रहे हो. और ये सच है. हमने भी बैठ के जब बात की थी, हमने यही की थी कि हम पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ बैठूंगा. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा. मुझे कभी नहीं पता था कि मैं देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठूंगा या लोग मुझे जानेंगे, वो मुझे मेरे नाम से जानेंगे. ये रिकैलिब्रेशन इस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन आ चुका है. आई विल कम बैक टू द फैमिली अ लिटिल लेटर. फिजिकल मेंटल एग्जॉशन आ चुका है. साल की 4 फिल्में करने के बाद अब ऐसा लग रहा है आई हैव नथिंग मोर न्यू टू ऑफर, लाइक छाया जी से. अब मुझे ऐसा लग रहा है वही सेम चीज मैं कर रहा हूँ. स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड आर सो लो कि मेरे हिसाब से जो एवरेज बिलो एवरेज है वो लोगों के लिए गुड है, तो वो ना मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है. वो मेरे लॉन्ग रन के लिए ठीक नहीं है. वो फिर मैं मिसलीड होते होते ना कहीं फिर मैं खत्म ही हो जाऊंगा. आई वॉन्ट टू एक्ट फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन. आई वॉन्ट टू कीप दैट क्रिएटिव थिंग विद इन मी अलाइव. इसीलिए मैंने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम फॉर मी. एंड कमिंग बैक टू फैमिली, शादी की, बीवी के साथ हनीमून पे नहीं जा पाए, उसके साथ 3 महीने से ज्यादा बैठ नहीं पाए. बेटा हुआ, पापा मेरे पीठ पीछे, उसने कहा चलना मेरे पीछे शुरू किया. उसके दांत आए, मैं देख नहीं पाया. वीडियोस पे, फोटोज पे मैं उसको बड़ा होते देख रहा हूँ. इस व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार ये तो चलता रहेगा यार. थोड़ा समय घर पे तो दो. थोड़ी किताबें पढ़ो, थोड़ी नींद पूरी करो, थोड़ा ट्रैवल करो, थोड़ी फिल्में देखो. वो रिकैलिब्रेशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज द काइंड ऑफ पीपल आई एम गोइंग टू वर्क विद इन द कमिंग ईयर्स, या जिनके साथ मैं अगली फिल्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर में एक ही फिल्म कर रहा हूँ सिर्फ, दे डिमांड द बेस्ट आउट ऑफ मी. और अगर मैं ऐसा बर्न आउट करता रहूंगा तो मैं कभी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा. तो ये रिकैलिब्रेशन बहुत सारी चीजों का है, इवेंचुअली टू मेक माई सेल्फ अ बेटर एक्टर. इवेंचुअली He's not quitting. हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा. कहीं नहीं जा रहा. कोई जाने भी नहीं देगा आपको.